for the session. I will request to Anshu ma'am kindly present the bouquet to Bharat Bhushan sir. We have three eminent personalities among us for this session, and I will now request to Manisha Sharma for presenting their paper. Ma'am Manisha, please. टाइट टाइट कर दो Cultural diversification, along with the different ethnic groups, play a very important role in examining the significance of the state. With this note, Namaskar to everyone. I am Manisha Sharma, PhD scholar, Department of Political Science from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. I'm here to present a paper that is based on the major theme folk songs, the soul of Indian culture, and the impact of technology. Culture in the state of Assam, it's in its true sense, today is a cultural system composed of different ethnic cultural compositions. Therefore, based on this, I have written a paper on cultural diversification in the state of Assam, a comparative study of Assamese culture and its significance in the present time. I'll not give take so much of time, so just I'll just give my abstract to you. Uh, Assam, a state in northeast India, is known for its rich cultural diversity of over 30 different ethnic groups, each with its unique language, religion, and customs. The cultural diversity is reflected in the state's art, music, dance, and cuisine. Therefore, while dealing with the study area, the paper is mainly focuses on the different aspects of culture, including music, art craft, festivals, and so on. There are various reasons for a unique nature of Assam in terms of culture with the other states in India. For instance, the Assamese people are known for their hospitality. They are always willing to welcome guests into their homes and share their food and culture. Also, the Assamese society is traditionally matrilineal, which means the property is passed down through the female line. This is a unique practice in India, where most societies are patrilineal. The culture of Assam is deeply connected to nature. The state is a home to a number of important rivers, forests, and wildlife. And these natural resources are an important part of Assamese identity. Assamese culture is significant for a number of reasons. First, it is a living culture that is constantly evolving. The different ethnic groups in Assam continue to interact with each other and share their cultures, which has resulted in a rich, vibrant cultural landscape. Secondly, Assamese culture is a repository of knowledge and wisdom. The state's oral tradition, folk tales, and religious states contain a wealth of information about the history, philosophy, and values of the Assamese people. Thirdly, the Assamese culture is a source of pride for the Assamese people. The state's unique culture helps to define the Assamese identity and provides a sense of belonging for the people of Assam. Assamese culture is also significant for its contribution to the wider Indian culture. The state's
art, music, dance, and cuisine have all influenced Indian culture in significant ways. For example, the Bihu dance, which is a traditional Assamese dance, is now performed all over India. Overall, Assamese culture is a rich and vibrant culture that is significant for a number of reasons. It is a living culture that is constantly evolving. It is a repository of knowledge and wisdom, and it is a source of pride for the Assamese people. It has also made significant contribution in the Indian culture. So to conclude, I would like to quote few lines of a poem penned by Dr. Bhupen Hazarika. For your reference and understanding, I will also summarize the meaning of these lines later on. So the lines are, in Assamese only, I'll make the lines. Ahom amar rupohi, guno runai nehesh, ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা ৰামধেনুৰে দৰে তোমাৰ ভাষাৰ মৰমবোৰে মিলন সেতু গঢ়ে লুহিতৰে বহাল পাৰক প্ৰণিপাত কৰোঁ জন্ম ললো ইয়াতেই যেন মৰো Here, the poet emphasizes on the cultural diversity in Assam through the extended metaphor of 7 varied colors of a rainbow. Thank you very much. Thank you, ma'am. I will request to all the participants kindly follow the time guidelines as we are running short of time. So please be stick to the timelines. Our next participant is Ms. Pinku Jha. I will request Pinku Jha, kindly present your paper. Thank you, ma'am. So, I'm Pinku Jha from the Maharaja Sayaji University itself. I'm from Department of Political Science, a senior research fellow there in the department. And since the topic, the major theme of this conference, this international conference is fundamental, like about the folk culture, the Indian culture. So there was a sub-theme on fundamentals of Indian culture. So keeping that in my mind, I have written a paper, that research paper titled Fundamentals of Indian Culture through the prism of C. Rajagopalachari's idea. So I'll just give a brief about my paper, the major, the discussion that I have made in the paper. So just to brief out this particular paper when I was writing, so there are two different, we can say the themes or the variables in general. The one is the fundamentals of Indian culture. So the very first part of my paper, it talks about the fundamentals of Indian culture. So in general, we know we had some discussion in earlier sessions. Speakers, they have mentioned about the richness of Indian civilization, Indian culture, and then particular discussion on different folk culture also that we have also seen. So keeping, or maybe we can say in that reference only, this paper also talks about the fundamentals of Indian culture. So there is a Sanskrit verse that talks about that says Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. So that is the where we can say in just one line the richness of Indian civilization or Indian culture that we can understand through this. It means that we have the one truth, the one Satya, but the intellectuals or the people who are working on, they're trying to understand it, they present it, they interpret in a different way. So that is the beauty of Indian culture. And for that essence only, we have seen n number of scholars and number of thinkers, they have been writing, they have been presenting their views. What Indian culture, actually, what does it mean? So just for example, we can understand we have a Eurocentric understanding as if now in academia, like my paper, it actually talks about this is one of the objectives to have an alternative to the existing knowledge system that is more or less a Western in nature. So how we can have an Indian notion where we have some alternative. For example, the dharma, the justice, the nyaya, these are the principles, these are the concepts. They have the notion, they provide us the value system that is not just relevant to the one area or one region, but that is important at a global level, at a global sense, we can understand its meaning.
So in that sense, only in general discussion, I have tried to provide some major arguments to understand, to analyze the major arguments made by different scholars about the richness of Indian culture. The second part, it talks about a particular thinker in the 20th century, was our first Indian governor of India and one of the very important philosopher. We don't consider we consider him as just a politician, Rajagopalachari. He was very much active in the Indian politics after post-independent post-independent India. But as of now, we have his philosophical ideas also. So how we can locate his ideas to understand, to analyze, to explore the notion of Indian civilization or Indian culture. So that particular second part of my paper, it talks about his ideas. So when he's talking about the culture, he gives a particular statement. I just read out the statement. He writes, about the Upanishads, for example, the Upanishads proceeds to explain that by the result of the life and discipline taught therein, one will attain equanimity and reach knowledge and the power of enjoying all that comes to one to the best advantage. You will thereby, says the Upanishads, properly enjoy the things of enjoyment for years and years, that is in the right way and not leading to pain and grief. So this provides a spiritual understanding of the Indian culture. But this spirituality, we can see how when we are talking about Indian culture, for example, this folk culture, so maybe the language is having, maybe it's considered as an elite or maybe Sanskritized people. They are just talking about Upanishads or Gita or anything else. But we have these kind of interpretations in folk culture. Any art, any dance, any music, they have this connection. So we have later on, for example, particularly the in Assam, in Bihar, in different Gujarat, we have, for example, the Garba. So these are the music, for example, it's considered to be of just a folk music, but it has the element of spirituality, that particular essence, the element of spirituality found in the Indian civilization, we can connect it to the ideas or the notions of the maybe we can say how the unique it is. So that uniqueness is mainly understood by these scholars, these thinkers. They have been writing about it. So the second part of my paper, it talks about this only. So this was the main you can say the structure of my paper. So that I have written. And thank you so much for providing this space to share my views on this particular thing. Thank you so much. Thank you, Pinku Jha sir. And we appreciate that you are understanding our time limits. Next is Devanshi Acharya. I'll request to Devanshi Acharya, kindly be on stage and present your paper. Next is Aditi Sharma, Vishal Vijay Mathur, Trilok Singh, Milind Mani Damala. Please be ready. The recent G20 held under India's presidency had the theme Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. So what does Vasudhaiva Kutumbakam mean? It means the world is my family. I'm Devanshi Acharya. I'm pursuing my master's in political science from Department of Politics from Maharaja Sayajirao University. The major theme of my paper is fundamentals of Indian culture. And in this, I'll discuss how concepts of Indian culture are found in global justice discourse. First, I'd like to briefly explain what global justice is. Global justice is a topic considered to be contemporary by the thinkers in the West. But I would today like to point out that certain tenets did exist in our Indian culture. First and foremost, I would like to point out, as I previously mentioned, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is my family. When we call world my family, I don't only tell that the world is interconnected, but when I use the word family, that I show that bonds of respect and benevolence underlie this relation. So, this mantra of Vasudhaiva Kutumbakam is very important when we look at it from the lens of global justice. We see that in Indian ancient society, the periphery of justice was not only me, my family, or even my community. It was the entire world. Another concept is that of dharma. The concept of dharma, like that of global justice, relies on morality. When global justice talks about responsibilities, dharma in ancient society told that everyone has to perform their duty for the society to function properly. Dharma is also seen as a tool to bind the society together.
This interpretation is found in Mahabharata, wherein it is told dharma is the tool that holds the society together. So we see that Indian society since ages tells that everyone has to live in a harmonious existence. Also, another Rigvedic mantra talks about cooperation. Global cooperation is very important to solve global issues. So when we look at the Rigvedic mantra that tells us that our inspirations should be in unison, that our goal has to be one to solve the problems of the nation and the globe, of course. An important concern of global justice is environmental degradation. Prithvi Sutak of Arthaveda tells that the earth is our mother and we all are her children. So as her children, it is our responsibility to take care of her, to stop the degradation. To conclude, I'd like to tell that Indian culture has excellent foundations of concepts like global community, morality, justice, cooperation. These concepts need to be included in the ongoing global justice discourse. The inclusion of them would not only help India navigate the web of global injustices, but also elevate the status of Indian culture, Indian ancient thought in a world dominated by the ideas of the West. India has always demanded for the world to be made more equal and for developing countries to have meaningful vote in matters of the world. So being the torchbearer for global equality, India needs to draw inspiration from its own culture, thoughts and values and use them as a basis for formulating policies. It is time that India looks at its rich past to create a better future. Thank you so much. Thank you, Devanshi ma'am. Now next I will call Aditi ma'am. Good afternoon to one and all present here. I'm Aditi Sharma from the Department of English and I'm pursuing my PhD from the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. So the topic of my paper is role of folk dance in India culture and I'm especially looking at Garba and the goddess tradition. So what I've tried to decode in this paper is that how this particular dance form actually celebrates the principle of divine feminine in our country and this dance form actually is not about mere celebration but it's actually reviving that Shakti principle in us. So folk music and dance helps one decipher the meaning of unity and brings everyone on the same platform. It enriches life because it's a kind of mirror of our culture, like the art, the tradition, the custom, the rituals which we are following. So Garba particularly is not just restricted to the festival of Navratri. Rather, it is celebrated on various key occasions like birth, marriage, and also religious ceremonies. So it honors the Shakti principles and the Garba is performed around an earthen pot, which is also known as Garbo, and it holds a lamp inside, which is known as Garbdeep. And so the very symbolic meaning behind this act is that the pot symbolizes the womb, which contains life, and the lamb resembles the fetus, which grows within the body. So we can see that how this particular dance form has a very deeper and a poignant meaning behind it. So the circular movements of the dance stresses us upon the cyclical nature of life, symbolizing that it's only time which remains constant and highlighting the unchanging and invincible nature of the goddess. In both the Vedic and Tantric traditions, the goddess is linked to samsara. She dictates the cycle of birth and death and rebirth and flows as energy which infuses life into every animate and inanimate being. So, Garba is performed using various styles. For example, Ek Tali, Be Tali, Tran Tali. I won't elaborate them because of the constraint of time. So, as every region has its own speciality and distinct set of beliefs, the style of celebrating and representation also varies. So, in conclusion, I would like to just add that how folk dances play a crucial role in the Indian culture as it binds them to their roots and inherent set of values. It and especially the folk dance Garba, it honors womanhood, fertility, and celebrates the act of creation. It's a time to connect with nature, reflect, and appreciate the beauty of femininity.
Through the medium of lively and graceful dance, it shed lights on the contrasting traits of goddesses. Thus, I would like to just conclude with the fact that how folk dances play such an integral role in our society by instilling religious, cultural, as well as spiritual values amongst us. Thank you. Thank you, Aditi ma'am. Before we proceed, I would like to call Trilok Singh sir. Please kindly contact at backstage first. There is some glitch in your technical session. Okay, that's not an issue. Sir, please. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. My name is Trilok Singh. I'm from Faculty of Performing Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. My paper is the hybridizations of culture during or in the age of folk tech. Today, we are in the era where technology is by and large is a part of our day-to-day life. We wake up in the morning and we start with the phone. So right from the opening the eye and sleeping on the bed, the technology with us and every means. So I have just tried to explore in this paper how we can evolve good things by using technology. Technology is harming, but at the same time, it also supporting to our folk cultures. So folk culture and technology are closely linked, contributing to society's growth and influencing customary behavior. Traditional culture faces challenges and opportunities from contemporary technology, such as industrialization, globalizations. However, technology can sometimes threaten culture as the ease of access to digital entertainment and media can water down or push traditional culture expressions to the background. It has also made folk theatre more accessible, allowing artists and organizations to exhibit outside their local and regional areas and gain global attention and support. Documenting culture custom is crucial, and any technology changes should be driven by community goal. However, it has also diluted cultures and commercialized art. Technology has improved lighting and sound system, visual effects and projections, set designs, costumes and makeups, and combining media. However, India must find a balance between modern technology and folk theatre's heritage to thrive and retain its culture value. Traditional folk practices have experienced a slow but a steady decline in recent decades, alongside a concomitant trend towards more standardized forms of culture as a result of people's migration to metropolitan areas and adaptations of more lifestyle. Folk performing arts and artists, for instance, have begun to use electronic instrument, recording software, and digital productions techniques into their work, which has resulted in the creation of a new subgenre of fusion. In certain instances, the introductions of new technology has led to renewed interest in traditional forms of folk culture. The modern public has access to a wide number of digital archive, online commitments. It is crucial, however, to acknowledge that advance in technology can sometimes pose threat to the traditional forms of culture. Traditional modes of culture expressions, for instance, have been watered down to push in the background. Though the use of technology which may provide forums for the exchange of cultural knowledge in addition to chance of a group projections and individual education, it is possible to make process of reviving folk customs much more straightforward. A larger number of people will have access to a folk culture as a result of ability of technology to bridge the gap between geographical and socio-economical differences. In the realm of folk theatre, the introduction of modern technologies has made possible expand chance of both collaborative endeavors and creative expressions, opening the door to new possibilities. Traditional form arts such as visual arts and craft have been interpreted with the help of digital technology. This has resulted in the development of new ways of creativity expressions oneself as well as new artistic techniques. Folk musicians in a similar vein have started to include contemporary elements into their performance. So the summary of my whole this paper is the technology we are talking
as and when. But the thing is, whatever way the technology is available with us, we have to use according to our need. The simply I'll give you the example. जैसे एक हम कहते हैं कि सिंपल हम पानी की बात करते हैं, हमारे पास एक पानी एक एलिमेंट्स है, राइट? सो व्हेन जब हमको प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं, जब हमको नहाना होता है तो उसी पानी से हम शरीर को धोते हैं, कपड़े गंदे होते हैं तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर पानी, द वाटर इज सेम बट द यूज इज डिफरेंट. सो हियर द टेक्नोलॉजी इज लाइक अ वाटर. It is our responsibility, according to our need, we have to use. Using or overusing any technology which may harm. So in any folk culture or in any say performing art, I'm basically belong to a theater arts. So in theater art, it is very useful to project good expressions of our artist. For example, I'll give you the simple, small example of one very famous play, Ek Aur Dronacharya. So that Ek Aur Dronacharya play, the beginning of the play, the play itself is basically based on the professor of olden time and the modern time. What the changes and the challenges they face. So the beginning of that the productions or the play, the one professor is just sitting on the stage, right? So through the technology, the juxtapositions we have seen, we can show in that particular place. From the back side, we have given one light, and there is a one curtain, white cyclorama. Backside, there was a one artist who are looking like a Dronacharya, because Dronacharya is the best example. Whenever we give the example of teacher, Dronacharya is on the top. So there is a Dronacharya behind the curtain. So the shadow of Dronacharya is there, and in the front side, the actual modern professor is there. जो पीछे है उसके हाथ में उसके तीर है और आगे है उसके हाथ में पेन है. So right from the ancient, we are to the modern. So with the small projection, with the using of a small technology, the modern lighting, we can have a better expression. So this way we can have amalgamations of both technology and folk culture, but again, according to our need. That's all. Thank you. थैंक यू सर. हम और आपको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हमें थोड़ी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल विशाल विजय माथुर. सर, काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट योर पेपर. सर विशाल विजय माथुर. Okay, not an issue. We'll proceed this. Mr. Chilan Mani Dhamala. Kindly be on stage and present your paper. I will request to the technical team. Kindly play the Milind Mani Dhamala's presentation. It's Milind Mani Dhamala presentation. Good afternoon, everyone. I'm Milind Mani Dhamala, a PhD scholar from Sikkim University. The topic I will be presenting on is the changing contours of Tamil Selu and its practice in Sikkim. So I'd like to tell you something about Sikkim at first. So the ethnic cultural diversity of Sikkim marks a heterogeneous population, including the three major ethnic communities, namely the Nepalis, Lepchas, and Bhutias. The Tamang constitutes a significant part of the Nepali section of the state population. The Tamang community, a Tibeto-Burman group with roots in Tibet and Mongolia, is primarily found in the eastern Himalayan regions of Nepal, Sikkim, and Bhutan. They are one of the largest ethnic groups
predominantly found in regions of Sikkim, Darjeeling, Kalimpong, Assam, and other northeastern states. The concentration of Tamang population, particularly in Sikkim, is found in the three major districts of Sikkim, south, west, and east. The Tamangs, also called Murmis, and at present are considered as scheduled tribe. Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Act, Amendment Act 2009, the community have their own distinctive traditional folk music, namely the Wai prayer song, Rama the wedding song, and Selo, a form of music that practices in their daily lives. This paper, particularly taking Tamang Selo, explores the observable shift in its practice over the time. So I'll move on with research methodology. Okay, so this paper is explanatory in nature. It is majorly based on analysis of secondary sources, including music video, existing research and literature. However, primary data collected through through focus group discussion with the members of Cultural Department of Gangtok, Manan Kendra, Sikkim, in order to understand the changes between the Cultural Department, are majorly involved in organizing and performing the Tamang Selo at the state level. Further observation has been made by attending the events organized by the Cultural Department and Manan Kendra on 15th of August 2022 and on Bhanu Jayanti celebration on 13 July 2023, and other such events held in MG Marks. Next slide, please. So this is my study area. This study has been conducted in Sikkim and mostly covered the parts of Gangtok. Gangtok, as it remains the state capital and hub of diverse culture communities. The global modern culture is found and being highly influential in Gangtok, which remains important to the study for tracing and identifying the changing practices. However, the town marriages took place in outskirts of Gangtok, while the cultural events in main town of Gangtok. One of the events was also held in South Sikkim, where Tamang Selo was performed. So I'd like to tell you something about Tamang Selo. This is a brief description. Tamang Selo are primarily performative songs that are sung during all the important rituals of the community, including marriages and community festivals. Okay, so the vibrant and rhythmic musical form personifies the ethos of their daily lives, expressing the joys, sorrows, celebration, and struggles of the community. The Tamang Selo includes a majority of upbeats that are accompanied by native instruments called Damphu and Tungna. Damphu and Tungna are two prominent instruments of Tamang community. The Damphu is a percussion instrument and Tungna is a stringed instrument. Tamang Selo in the past. So Tamang Selo in the past was, in the early stages, the Tamang Selo songs used to have prolonged durations. The time duration of the performance could go on all night, even in the following day. Following the Tamang, the Selo was conventionally performed using only two of the traditional instruments, that is Damphu and Tungna. With regard to the practices, it was customarily performed by two groups. Furthermore, hinting on the socio-cultural and religious significance, the member of the Cultural Department of Gangtok, Sikkim states, the earliest form of Tamang Selo was pure and restrained to worship the gods and Mother Nature. And the Tamang Selo folk songs always started with terms Amahe, Amahe. Okay, so I'll move on to the conclusion. Despite the Tamang Selo being one of the oldest traditional music in the community, it remains to be very popular in Sikkimese society. Thus, the old folk music that generally remains unpopular among the younger generations remains questionable in the context of Tamang Selo. It is observed as remains a significant part of the mainstream Nepali music of Sikkim, Darjeeling, and other northeastern Himalayan regions. Particularly in Sikkim, the Tamang Selos are widely performed, and performance are present is not limited to the Tamang community. And with this, I'd like to conclude my presentation. Thank you. Thank you, sir.
just because of the time constraint, we have to stop you for like presenting, like make it soon. And now I will request to Ajit sir to share his words of wisdom with us. Ajit sir, I will request you to kindly be on stage. प्रेजेंटेशन कट रही है ना यार, और कुछ नहीं। मंच पर हमारे जो सहयोगी हैं वो सब इस विषय के एक्सपर्ट हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मैं थोड़ी सी बातें आपसे करूँगा नॉन एकेडमिक टाइप की। सबसे पहले अंशु जी का और जयपुर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं अभी 3 महीने से हिंदुस्तान से बाहर था और थोड़ा सा विदेशों में जो कल्चर है, सिनेमा है, थिएटर है, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और संस्कृति और टेक्नोलॉजी को लेकर जो सारी डिबेट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर हैं, वो यहाँ की बात नहीं है, सारी दुनिया में है। और जब जब टेक्नोलॉजी कल्चर से टकराती है तब तब ये सवाल उठते हैं और हर जनरेशन एक सवाल से जूझती है और जनरेशन बदलती है और दूसरे सवाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं टी.एस. इलियट की धारणा से सहमत हूँ कि जो हमारी परंपरा और संस्कृति है वो एक बहती हुई नदी के समान है, जिसमें जो कल था वो भी हमारी परंपरा संस्कृति है, जो आज है वो भी है और जो कल होगा वो भी हमारी परंपरा और संस्कृति है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया भर में ये सवाल उठा रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी जीवन पर हावी हो जाएगी, जो कि उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे हो जाएगी, तो क्या होगा। तो जैसे ऐसे लगता है कि इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। आप देखिए कि आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा। अभी तक हम गूगल, इंटरनेट ये सब के बारे में जानते थे, लेकिन मेटावर्स की टेक्नोलॉजी जब आ रही है और उसने पूरी मनुष्य की सभ्यता के सामने एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि उस समय मशीनों का इतना ज्यादा हो जाएगा, जो कि हम साइंस फिक्शन में और हॉलीवुड की साइंस की फिल्मों में देखते थे, वो आज के जमाने की रियलिटी बनती जा रही है। एक जमाने में आज तक चैनल पर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक टेक्निकल चमत्कार दिखाने की कोशिश की थी कि अमिताभ बच्चन मुंबई में थे और उनको स्टूडियो में ऐसा लगा कि वो उसके स्टूडियो में दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि लोक संस्कृति और लोक के बारे में जो अवधारणाएं हमारी थी, तो यदि हम लोग को ये माने कि लोक हमारे ग्रामीण जीवन का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहरी जीवन में लोक नहीं है। तो फिर शहरी जीवन का लोक क्या होगा। मैंने एक बार ये लिखने की और बताने की कोशिश की थी कि हमारा जो ये हिंदी सिनेमा है और पॉपुलर सिनेमा है, और हमारे पॉपुलर सिनेमा के गीत हैं, वही आज के जमाने का लोकगीत है। और फिल्म सॉन्ग्स आर नाउ it's gradually taking the space for folk music and folk songs। तो वो एक बड़ी बात है कि आखिर लोकगीत और लोक संस्कृति क्या हुई। उसके बारे में ये कहा गया कि वो जन जन में जो व्याप्त है। तो आप देखिए कि आपके स्मार्टफोन के माध्यम से आज सिनेमा के गीत जन जन में व्याप्त हैं और हर कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक सिनेमा के गीत गुनगुनाता हुआ चलता दिखाई देता है। लेकिन हमने कभी उन फिल्मी गीतों के बारे में और सिनेमा के पॉपुलर कल्चर के बारे में कभी हमारे एकेडमिक्स में बहुत गहरे अध्ययन नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता है। एक जो टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी बातें हैं, इसमें नोम चॉम्स्की जो सबसे बड़े दार्शनिक हैं, आप देखिए कि हमारी दुनिया 3 बड़े विचारों के बल पर चल रही है इस समय, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी, पैसा और बिजनेस और पॉलिटिक्स के बावजूद यह जो पूरी दुनिया है जिसमें कई 100 देश शामिल हैं, पूरा ग्लोब, वो विचारों के आधार पर चल रहे हैं। यानी कि जिसके पास आइडियाज और इंफॉर्मेशन है वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा नाम MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के नोम चॉम्स्की का आता है। मुझे उनसे मिलने का दिल्ली में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से कई दशक पहले वो आए थे और उनके कई व्याख्यान हुए थे दिल्ली में, जिसमें उस समय 92 के आसपास जब अमेरिका ने इराक पर वॉर किया था वहां, तो उस समय नोम चॉम्स्की ने कहा था कि तोप की नदी घूम गई है, कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने एक व्याख्यान में कहा था
कि टेक्नोलॉजी प्रभु वर्ग के खिलाफ या उनके काउंटर में जनता को शक्तिशाली बनाती है। यह बात सैम पित्रोदा ने सुनी थी अमेरिका में उनके व्याख्यान को, और सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी को ये बात बताई थी, और राजीव गांधी ने तब हमारे देश में टेक्निकल रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और ये मोबाइल का और स्मार्टफोन का ये सारा कुछ जितना आप देख रहे हैं आज हमारे जीवन में, वो नोम चॉम्स्की के उस विचार से प्रेरित होकर आगे आकर कन्वर्ट हुआ हमारे सारे जीवन में, और हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हुआ। और वो कैसे आम जनता को शक्तिशाली बनाती है, इसके भी आपके सामने उदाहरण है। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि पहले सिनेमा हॉल में जो जा सकता था वहीं फिल्में देख सकता था, तो और जो गरीब लोग थे और अशक्त लोग थे उनके हाथ में कोई उपक्रम नहीं था कि वो सिनेमा को देख सके। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आई और टेलीविजन का विस्तार हुआ, हमारे सारे सुपरस्टार जो केवल सिनेमा की स्क्रीन पर सिनेमा हॉल में थे वो घर घर में चले गए, और वो घर घर से फिर मोबाइल के माध्यम से वो हमारे पॉकेट में आ गए। तो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। तो टेक्नोलॉजी कल्चर का डेमोक्रेटाइजेशन करती है, जनतांत्रिकरण करती है, और बहुत लोगों को शक्तिशाली बनाती है कि वो भी इस समाज में सामाजिक जीवन की हिस्सेदारी कर सके और उसका आनंद उठा सके। दुनिया भर में ये बड़ी डिबेट चल रही है। नेटफ्लिक्स को आपने सुना होगा कि नेटफ्लिक्स इस समय वर्ल्ड मार्केट की सबसे बड़ी प्लेयर है सिनेमा के क्षेत्र में। उसका पूरा नेटवर्क और पूरा बिजनेस ही इसी टेक्नोलॉजी पर है जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। और दुनिया के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल उससे लड़ाई कर रहे हैं कि हम आपकी फिल्में नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपकी फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो रही हैं। और उसी के बाद जब हम कोविड आया, और कोविड के बाद हमने देखा कि कोविड में इतने फेसबुक लाइव्स हुए, माने कि इंसान के भीतर डायलॉग करने की जो आदिम इच्छा थी, वो यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम 2 साल कोविड में कैसे बिताते। तो 2 साल कोविड में सारे संस्थान, सारे यूनिवर्सिटी, सारे सरकारी और गैर सरकारी जितने भी बहसों के केंद्र थे, उन्होंने यूट्यूब लाइव, जूम पर, ऑनलाइन ये सारे डायलॉग शुरू किए। हालांकि उससे उन संस्थानों के बहुत पैसे बचे, और उससे कलाकारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जिन कलाकारों को और वक्ताओं को और विद्वानों को पैसे मिलते थे ऑनलाइन में वो सब नहीं मिले उनको। लेकिन वो तो हुआ। एक लंदन का उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपसे कि लंदन में जो थिएटर का केंद्र है, वैसे आप देखिए कि दुनिया भर में, अभी मैं देख रहा था कि दुनिया भर में जो थिएटर का कारोबार है रंगमंच का, उसमें लोग भी है, नगरीय रंगमंच है और बाकी भी एलिट भी है। उसका सबसे बड़ा केंद्र न्यूयॉर्क का, अमेरिका के न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे है। ब्रॉडवे में कई हजार करोड़ की इकोनॉमी होती है एक एक थिएटर की। और दूसरा सेंटर है लंदन का पिकेडिली सर्कस, जहां बड़े बड़े म्यूजिकल्स होते हैं। अब पिछले दिनों मुंबई में, अभी हमारे हिंदुस्तान में वैसा कोई थिएटर नहीं था जहां हॉलीवुड के स्टाइल के और ब्रॉडवे स्टाइल के म्यूजिकल प्लेस किए जा सके। अभी मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी कल्चर सेंटर बनाया मुंबई में, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का कल्चर सेंटर है जिसमें वो म्यूजिकल हो सकते हैं। तो अब बड़े बड़े म्यूजिकल्स जो होते हैं और म्यूजिकल्स प्ले हैं जो कि 100 साल से हो रहे हैं, मतलब कि उसमें कई पीढ़ियां आती हैं, एक्ट करती हैं, चली जाती हैं, तो उसकी इकोनॉमी सिनेमा की इकोनॉमी से बहुत बड़ी होती है। एक नाटक था पीटर पान, मैंने 3 साल, ये कोविड से पहले 19 में मैं इंग्लैंड के एक अलग हिस्से जिसको कि हम वेल्स कहते हैं, वहां के चेस्टर शहर में था। वहां मुझे किसी ने कहा कि चलो नाटक देखने चलते हैं, नेशनल थिएटर का नाटक ओपन हो रहा है। नेशनल थिएटर इंग्लैंड के लंदन में साउथ बैंक, टेम्स नदी के साउथ बैंक पर स्थित है। और उसका एक एक्सपेरिमेंट इतना पॉपुलर हुआ जो दुनिया के लिए आंखें खोल देने वाला है। तो उस पीटर पैन को मैंने चेस्टर के एक थिएटर में देखा, और वो 3D प्रोजेक्शन में इस तरह से उसका लाइव किया गया था कि मुझे लगा कि मैं लंदन के टेम्स के किनारे बैठकर वो नाटक देख रहा हूँ। मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता चला कि ये उस नाटक का लाइव प्रसारण है। तो अब जब से पहले उन लोगों ने इंग्लैंड के 70 स्क्रीन पर नेशनल थिएटर ने ये प्रसारण शुरू किए, उसके बाद वो दुनिया के करीब करीब 60 देशों के 2500 स्क्रीन पर वो ले गए उस नाटक को। और इससे इकोनॉमी कितनी बढ़ गई अंदाजा नहीं लगा सकते। आप गूगल में सर्च कीजिए, गूगल बताएगा आपको, आप लोग नौजवान हैं। नेशनल थिएटर की आमदनी, सालाना आमदनी
105 मिलियन पाउंड हो गई, यानी कि 10.5 अरब रुपए की इकोनॉमी बन गई। तो आप देखिए कि एक टेक्नोलॉजी ने, जो लाइव टेलीकास्ट की टेक्नोलॉजी है 3D, उसने एक नाटक की इकोनॉमी 10.5 अरब रुपए में पहुंचा दिया। उसके अलावा जो हमारे जितने भी दूरदर्शन, पहले दूरदर्शन होता था या ऑल इंडिया रेडियो होता था, हमारे पास जब से रिकॉर्डिंग की सुविधा आई और संगीत हमारे घर घर में पहुंचा, पहले एलपीजी रिकॉर्ड होते थे, बाद में छोटे छोटे कैसेट्स आए, बाद में अब वो सब इंटरनेट और पेन ड्राइव में आ गया। यूट्यूब पर इतने सारे गाने, इतनी सारी चीजें उपलब्ध हो गई हमारे पास। अब उसने पहुंचाया लोगों को। तो टेक्नोलॉजी करती क्या है कि वो केवल एक डिवाइस नहीं है, टेक्नोलॉजी एक आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी है तो सवाल ये उठता है, तभी जैसे ही हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक आइडियोलॉजी है, तो सवाल उठता है कि उसको कंट्रोल कौन करता है, क्या वो जनता के हित में कंट्रोल की जाती है। तो जितने भी इस पर हमारे समाज शास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट जिस तरह से हैं, वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, वो मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को पूंजी नियंत्रित करती है, यानी कि कैपिटलिस्ट नियंत्रित करते हैं और अपने हित में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो इंटरनेट आपको मुफ्त में मिल रहा है गूगल से, और जो यूट्यूब आपको मुफ्त में मिल रहा है, या जो फेसबुक आपको मुफ्त में मिल रहा है, उसको नियंत्रित कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जाहिर है उसको अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और उसके बहुत बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो तो होगा, लेकिन अब सवाल है, जैसे चंद्र प्रकाश देवल जी बोल रहे थे पहले सत्र में, कि ये जो टेक्नोलॉजी की ताकत है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे और उसको कैसे पहुंचाया जाए, और उसमें जो शोषण, अत्याचार और घपले हैं उसको कैसे बंद कर दिया जाए, और उसको करेक्ट कैसे, हाउ टू करेक्ट आवर टेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा सवाल आज दुनिया के सामने है। आज आप जानते होंगे कि दुनिया के 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं। एक तो नंबर 1 आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका का, बोस्टन में है। दूसरा कैम्ब्रिज है, तीसरा ऑक्सफोर्ड है, चौथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये सब जो ज्ञान के केंद्र हैं वो दिन रात इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि इस टेक्नोलॉजी को प्रो ह्यूमन कैसे बनाया जाए, यानी कि मनुष्यता के पक्ष में कैसे बनाया जाए। अभी एक क्रिस्टोफर नोलान की एक फिल्म आई है जो दुनिया भर में बहुत चर्चित है, आप कभी देखिएगा। हालांकि उसमें भी है कि उस फिल्म को आईमैक्स टेक्निक से आप यदि देखेंगे तब उसका मजा और अच्छा आएगा। अब आईमैक्स टेक्निक के जो सिनेमा स्क्रीन है वो इतने महंगे हैं कि एक आम आदमी देखिए तो मतलब 1000 से 2000 रुपए के टिकट हैं उसमें। उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर वो साइंटिस्ट थे जिनके कारण एटम बम दुनिया में आया। अब ओपनहाइमर की इतनी चर्चा हो रही है, और उन लोगों ने, हॉलीवुड ने क्या किया कि हिंदुस्तान के ऑडियंस को करने के लिए उसने पूरी फिल्म को हिंदी में डब कर दी है। हो सकता है कि दूसरी भारतीय भाषाओं में भी डब कर दी है। तो ये सारी जो डबिंग है और संस्कृतियों का आदान प्रदान है वो टेक्नोलॉजी हमारे सामने ले आती है। तो इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी हमें हमारे कल्चर को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा ये काम करती है कि इसको कम्युनिकेशन का काम करती है कि हम एक संवाद करें एक दूसरे से। तीसरा काम उसने किया है पिछले 100 सालों में, जब से जैसे जैसे आविष्कार हुए, कि उसने रिसर्च और एकेडमिक्स को बहुत बल दिया है और उसके संरक्षण को बहुत बल दिया है, आर्काइविंग को, कि इससे हम आर्काइव करते रहे हैं। अब बताइए कि जैसे महाराणा प्रताप हैं, यदि महाराणा प्रताप के समय में टेक्नोलॉजी होती फोटोग्राफी की और रिकॉर्डिंग की, तो आज हम उनकी आवाज सुन रहे होते और आज उसकी तस्वीरें उनकी हमारे सामने होती। लेकिन अब उसी में आप एक बिहार का किस्सा है मधुबनी का। आप लोगों ने सुना होगा कि मधुबनी पेंटिंग एक होती है। मधुबनी पेंटिंग जो पेंटिंग की स्टाइल है, जैसे राजस्थान की एक कई शैलियां हैं यहाँ की पेंटिंग की। पेरिस ने, दुनिया के पेरिस फ्रांस की राजधानी है, उसने वहाँ आर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है और भारतीय पेंटरों को पेरिस ने बहुत शरण दी है, आश्रय दिया है और उसने खूब पैसा लुटाया है। ये हुसैन, रजा, सुजा, बहुत सारे पेंटर्स हमारे वहां से प्रमोट हुए हैं। मधुबनी पेंटिंग का मार्केट इतना ज्यादा था पेरिस में एक जमाने में कि उसने पूरी भारतीय पेंटिंग के बिजनेस को सपोर्ट किया और उनको उतना ग्रोथ हुई। ये सारी ग्रोथ यदि वो उस समय की टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया गया होता तो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग वहां पहुंचती ही नहीं। उसी तरह एक जमाने में जब हमारे देश में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इनॉग्रेट किया 26 फरवरी के आसपास 1952 में, 1952 में, तो उस समय सिनेमा को दिखाने के उस समय तक हिंदुस्तान ने
वर्ल्ड सिनेमा को देखा नहीं था, दुनिया के बाहर के देशों के सिनेमा को, क्योंकि कोई साधन नहीं था हमारे पास। तो इतने बड़ी बड़ी रीलें, बड़े बड़े बॉक्स समुद्र के जहाज से और लद कर और इतने कष्ट के बाद हमारे हिंदुस्तान आते थे। तो जब यहाँ लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा, तब हमारे यहाँ सत्यजीत रे से लेकर और बहुत बहुत फिल्मकार पैदा हुए। और सिनेमा ने जितना लोक संस्कृति को प्रश्रय दिया है, आप देखिए कि जो सिनेमा की दुनिया में दुनिया भर में हुआ है, आप अफ्रीका का सिनेमा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का देखिए, दूसरे देशों का, कभी आप रूस का, या मुस्लिम देशों में अरब और ईरान और दूसरे देशों का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने लोक संस्कृति को एक पॉपुलर कल्चर में बदलकर और टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर जिस तरह से पेश किया है, वो हैरत अंगेज है। जापान में देखिए, चाइना, जापान जो कि एशिया की सबसे महान पुरानी सभ्यताएं हैं, इजिप्ट, ये सारे, तो वो सारा कुछ लोगों के बीच पहुंच गया। और नौजवान पीढ़ी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो लोग अपने कल्चर से नहीं जुड़े हैं, अपने चीजों से उनको मतलब नहीं, लेकिन उनको पहले की जनरेशन से ज्यादा अपने कल्चर से मतलब है। लेकिन वो कल्चर क्या है कि वो वही रूप में नहीं होगा जैसे आपके बचपन में या जवानी में हुआ करता था, वो बदलेगा और उसके रूप बदलेंगे। जैसे कि सुंदरता बदली है और सुंदरता के रूप बदले हैं। जब से हमारे देश में कॉस्मेटिक्स कंपनियों का कारोबार अभी आ रहा है कि 10 अरब से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उस तरह से। तो ये कैसे हो रहा है? एडवर्टीजमेंट की पूरी इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो सच्चाई में होता कुछ है और आपको दिखता कुछ है। तो ये जो इल्यूजन है, रियलिटी और इल्यूजन का जो पूरा जो डिफरेंस है, ये बहुत ही जटिल टॉपिक है जिस पर आपने ये सेमिनार रखा है। लेकिन अब उसमें समस्या कहां से आ रही है कि केवल हम लोग तो हमारा देश एक बहुत पाखंडपूर्ण देश है, हम जो बोलते हैं वो निजी आचरण में नहीं अपनाते। और ये पहली जनरेशन हिंदुस्तान को, पहली नौजवानों की पीढ़ी इस समय मिली है जिसमें पाखंड की मात्रा सबसे कम है, सबसे कम है उनमें पाखंड की मात्रा। वो जो चाहते हैं वो बोलते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, और उनको परवाह नहीं है, माने कि हु केयर्स जैसा उनका मामला है। और इससे हु केयर्स ने हमारे समाज को एक सॉलिड स्टेटस में पहुंचा दिया है, बहुत ठोस। और इसीलिए हमारा देश नौजवानों का देश है, और इसीलिए हमारा देश इतनी ज्यादा तरक्की कर पा रहा है कि हमारे नौजवानों ने टेक्नोलॉजी पर सवारी कर ली है, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को साध लिया है। आप देखिए कि आप अपने बच्चों से पूछिए, वो स्मार्टफोन को आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और कई चीजें आप भूल जाएं लेकिन वो नहीं भूलते हैं। ये जितने म्यूजिक के प्लेटफॉर्म, मैंने तो सुना भी नहीं था, बहुत बाद में सुना, क्योंकि मैं तो पुराने जमाने का हूं। तो स्पॉटिफाई एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, और पहले होता था कि यदि आपको सत्ता या पावर सपोर्ट नहीं करती है तो आपकी कला कहीं जाएगी ही नहीं, आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। आज यदि आप देखिए कि बहुत सारे सिंगर्स हमारे देश में हैं जिनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है, और वो फॉलोइंग कितनी है? 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ तक। अब स्पॉटिफाई पर या यूट्यूब पर यदि आपके 1 करोड़ फॉलोअर हैं तो आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन पहली बार जब रवीश कुमार ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया तो उसके कुछ ही दिन में उसके 4 मिलियन फॉलोअर हो गए, यानी कि 40 लाख लोग। अब 40 लाख, ये यूट्यूब 1 लाख फॉलोअर के बाद से यूट्यूब पैसा देना शुरू करता है आपको। तो इसमें उसी तरह फेसबुक पैसा देना शुरू करता है, उसी तरह आपके जितने भी इस तरह के ओटीटी हैं वो पैसा देना शुरू करते हैं। तो इससे हमारे देश में, जो कि 140 करोड़ के हम देश के लोग हैं, हमारा काम सिर्फ इसलिए नहीं चल सकता कि हमारे पास कुछ इमोशनल आग्रह हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये परंपरा है, इससे जुड़ना चाहिए, और ये परंपरा विरोधी है। ये सारी बहसें हमारी नई जनरेशन ने खत्म कर दी है, और वो आज दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आप इसका अंदाजा बिजनेस से लगाइए कि बिजनेस में, और बिजनेस और टेक्नोलॉजी और मीडिया, ये सब ने अपने आपस में हाथ मिला लिया है, और उसको हमारा पावर सपोर्ट करता है। आप इंग्लैंड में आज देखिए तो इंग्लैंड में सबसे जो महंगी इमारतें और प्रॉपर्टीज हैं वो हिंदुस्तानियों के पास है, और इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तानी है, अंग्रेजों से भी, जिसका नाम है गोपीचंद हिंदुजा। तो वो कैसे उसने, तो उसी तरह से हमारे नौजवानों के आदर्श उस तरह से हैं। आपके यही बगल के अनिल अग्रवाल हैं, वेदांता के चेयरमैन, और अनिल अग्रवाल वहाँ
ने जिस तरह से अपनी कंपनी को इंग्लैंड में लॉन्च किया और नौजवानों का एक पूरा समूह जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने वाले थे, ये ताइवान जो है, ताइवान चीन को इसीलिए टक्कर दे रहा है क्योंकि उसके पास सेमीकंडक्टर की बड़ी टेक्नोलॉजी है और बड़ी फैक्ट्री है उसके पास। सेमीकंडक्टर वो चीज होती है, हमारे नौजवान जानते होंगे, हमारा सारा इंटरनेट, सारे आज की टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर से चल रही है। वो एक चिप होती है जिससे सारा कुछ चलता है। आपका मोबाइल भी तो एक चिप से, छोटे से चिप से चलता है, जिससे हम पता लगाते हैं, जिससे हम करते हैं। साइंस और स्पेस की दुनिया उस चिप से चल रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी का स्वागत करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जैसे हमारे देश में जब टेलीविजन नहीं आया था, तो जब टेलीविजन आया तो हमें लगा कि ये कलाएं खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब तो टेलीविजन आ गया, टीवी आ गया। लेकिन हमने देखा कि शास्त्रीय संगीत को, नृत्य को और शास्त्रीय कलाओं को जिस तरह से दूरदर्शन ने सपोर्ट किया पूरे पिछले 50 सालों में, उतना सपोर्ट तो किसी संस्था ने नहीं किया। उसी तरह जब दूरदर्शन आया तो फिर हमें लगा कि सिनेमा खत्म हो जाएगा। लेकिन आज देखिए कि दूरदर्शन की इकोनॉमी लगभग हमारी 80,000 करोड़ को क्रॉस कर रही है, ये टेलीविजन की इकोनॉमी। और सिनेमा की इकोनॉमी इतनी ह्यूज हो चुकी है ग्लोबली, तो हम आज सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी जगहों तक पहुंच रहे हैं। और वो सिनेमा हमारी तो टेक्नोलॉजी को साधा गया। आज सिनेमा की टेक्नोलॉजी में हम लोग अमेरिकन फिल्मों के लिए, एनिमेशन के लिए बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो माइक्रो इकोनॉमी इससे डेवलप हुई है। और संगीत, कला और संस्कृति इसको एक नया जीवन मिला है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, भूमंडलीकरण, तो हमें लगा कि हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। अब इसका कारोबार कैसे चलेगा? आप मधुबनी इलाके में आप देखिए कि वो उन इलाकों में जो औरतें हैं, वो हो सकता है वो अनपढ़ हो, या फिर मध्य प्रदेश के ट्राइबल औरतें हैं जिनको पद्मश्री मिलते हैं अभी फाइन आर्ट्स में, उनके जो पेंटिंग्स हैं और उनकी कला है जो कि लोक से आती है, वो आज ग्लोबली सेल हो रही है और बिक रही है। ठीक है कि उसमें कुछ समस्याएं होंगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को ये मानते हुए नॉम चॉम्स्की के विचारों से कि टेक्नोलॉजी आम आदमी को शक्तिशाली बनाती है, इस शक्ति को ग्रहण करना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर, टेक्नोलॉजी इज पावर और आइडिया इज पावर। तो ये सारी चीजें उसी से नियंत्रित हो रही है। दुनिया की राजनीति, दुनिया का बिजनेस, डॉलर, पाउंड और यूरो की जंग और हमारा कल्चर, ये सब उस टेक्नोलॉजी से चल रहा है। तो भारतीय संस्कृति को इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संस्कृति 4000 सालों से है। और 4000 सालों से है तब जबकि इस दुनिया में, इस धरती पर धर्म नहीं था, कोई इस्लाम नहीं था, कोई यहूदी नहीं थे, कोई हिंदू धर्म नहीं था सनातन, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति थी। तो हम बहुत ताकतवर संस्कृति वाले देश हैं और हमें टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी से दोस्ती करने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने जैसे अभी जिक्र किया कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पहले से चली आ रही है और आगे भी इसका ऐसे ही निरंतर इसका विकास होता रहेगा और ये यूं ही चलती रहेगी। सर ने जब अभी यहाँ जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का, तो सर भी मुझे टेक्नोलॉजी के ही उससे मिले थे। सर का नंबर भी मैंने टेक्नोलॉजी की ही सहायता से प्राप्त किया था। सर के जितने भी लेक्चर्स थे वो मैंने FB पर देखे और फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर का नंबर मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी ने ही हमें आज यहाँ पे बहुत अच्छे स्पीकर से मिलाया है। तो उस टेक्नोलॉजी को तो हम थैंक देना ही चाहिए हमें। और मैं मोमेंटो के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ महारानी टाक मैडम और रामदयाल सर से कि आप प्लीज़ पधारें मंच पे। और हमारे आज के स्पीकर श्री अजीत रॉय सर को हमारी ओर से एक छोटा सा टोकन आप प्रेषित करें। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप जोरदार तालियों से हमारे स्पीकर का और हमारे जितने भी यहाँ पे जितने स्कॉलर्स आ रहे हैं उन सबका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहती हूँ शशि प्रभा मैडम को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शशि प्रभा मैडम का हम परिचय किस तरह से दें? आप हमारी इस सेमिनार की नींव बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने मैम के साथ जिक्र किया, हमारे कोई परिचित हैं, उनके ही थ्रू मुझे मैडम का नंबर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ इसलिए बार बार ये नंबर प्राप्त करने की बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप कोई आयोजन में लगते हैं तो आपको लगता है कि आपको कहीं कहीं से कुछ बहुत अच्छे लोग मिल जाएं और आपका ये जो सेमिनार है ये सफल हो जाए। तो मालिनी अवस्थी मैडम को मुझे बुलाना था और मेरा बड़ा मन था कि मालिनी जी आए, तो मैंने मैडम से कांटेक्ट किया और मैडम ने बहुत ही सहृदयी बनकर मेरे साथ रही मैडम। और मैं जो भी उनको मैसेज करती, मैडम प्लीज मैडम को कन्वे कर दीजिए, मैडम लगातार मेरे साथ रही। इसके लिए आपका बहुत आभार मैडम। और प्लीज आइए, आप मंच पे आइए, मंच पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी मैं युवा पीढ़ी को सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आसाम से, सिक्किम से, गुजरात से, हर तरह से, हर प्रदेश की चीज़ों को हमें सुनने का अवसर मिला। गरबा की बात हुई, सिक्किम के संगीत की बात हुई, आसाम की संस्कृति की बात हुई। राजस्थान में जहाँ आज हम हैं, वहाँ के मांगनियार कलाकार गुलाबो, अभी जो आपकी अतिथि होंगी, मालिनी जी को हमने सुना ही आज सुबह, देवल सर जी को सुना। हमारे बीच नौटंकी के महान कलाकार रामदयाल शर्मा जी उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दरअसल जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम जीवन की बात करते हैं। जीवन जब शुरू होता है, हमारी संस्कृति गाती है, हमारी माएँ गाती हैं। जब एक बच्चे का अवतरण होता है, वो रो रहा होता है, एक माँ पीड़ा में होती है और संसार गा रहा होता है। एक इंसान के स्वागत का इससे बड़ा प्रतिमान क्या होगा जो हमारी संस्कृति हमें दी जाती है। और यही हमें सिखाती है कि जिंदा रहने का नाम है संगीत, और वो है लोक संगीत, लोक कलाएं। वो किसी विश्वविद्यालय या कहीं जाकर हमें सीखने को नहीं कहता, वो हमारे घर में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारा आस पड़ोस हमें सिखा जाता है। और यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चीज है। और आज हम बात करते हैं, जब बार बार तकनीक की बात आती है, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं। कभी कभी डर भी लगता है, और लेकिन कभी कभी देखकर उत्साहवर्धन भी होता है कि बहुत से कलाकार इस तकनीक ने दिए हैं। आज हम मैथिली ठाकुर को देख रहे हैं, आज हम बहुत से साधु बैंड को सुन रहे हैं, और भी दक्षिण के श्रीवल्ली का जो गाना सुपरहिट विश्व के स्तर पे जाके हिट होता है, वो लोक की ही देन है। तो हमारा लोक आज भी हमें जोड़ता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। मुझे लगता है इससे बड़ी बात कुछ कही नहीं जा सकती। लोक हमें जीवन की प्रेरणा देता है और हम उसमें जुड़े रहें, ये हमारा दायित्व ही हमें सौंपता है और हमें कर्तव्य की ओर बार बार अग्रसर होने को कहता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ कहना इस सभा के लिए उचित नहीं होगा। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। Thank you, ma'am. And we really feel privileged to hear this diverse information, this diverse knowledge from the eminent personalities who are presenting here. And now I will request
to Bharat Bhushan sir, kindly present this moment or this token of love to ma'am. Everyone please give a big round of applause to ma'am. Just because of her, we are now able to see Malini ma'am today with us. Thank you sir, thank you ma'am. This session is not ended here. I will now request to Madam Anju Sharma to kindly proceed this session forward. And for the next session, I will request to Suruchi Gehlot, Praveen Mirdha, Samidha Vedabala, Dibya Jyoti, Raju Rawat, Ashish Shankar, Mevalpang Langor. Please be attentive for your presentation. Over to you, ma'am. Good afternoon, all of you. सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम. तो मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम, प्रोफेसर माया रानी टाक मैम एवं प्रोफेसर वंदना कल्ला मैम. माना कि आप सब लोग बहुत थक गए हैं, ऐसा लग रहा है, तो प्लीज एक जोरदार क्लैपिंग के साथ आप वेलकम कीजिए हमारे गेस्ट का. प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम, प्रोफेसर माया रानी टाक मैम एवं प्रोफेसर वंदना कल्ला मैम. आइए सर, प्लीज आइए. समृद्ध विरासतीय संस्कृति और लोक रंग से ओतप्रोत सुंदर गुलाबी नगरी जयपुर में विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज एवं ICSSR नई दिल्ली के संयुक्त प्रयासों से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मानीय जनों एवं अतिथि प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत. आज हमारे मध्य LNM विश्वविद्यालय दरभंगा से पधारी अति सम्मानीय प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम मौजूद हैं. आपका रंग बिरंगी संस्कृति के प्रतीक जयपुर शहर एवं इस सभागार में मैं डॉक्टर अंजू शर्मा हार्दिक स्वागत, आभार और अभिनंदन करती हूँ. मैडम आपको प्लीज. हाँ, मैं प्रोफेसर माया रानी टाक मैम से निवेदन करती हूँ कि आप प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह जी मैम का पुष्प गुच्छ भेंटकर अभिनंदन करें. ये चीज भी मेंशन कीजिए कि लावण्य कीर्ति मैम का जो वाइवा लेने गए थे PhD का, वो माया मैम ही थे. अरे वाह वाह. आज के इस सेशन को चेयर कर रही हैं परम विदुषी प्रोफेसर माया रानी टाक मैम. आप बड़े महती दायित्व का निर्वहन कर रही हैं मैम. वैसे तो आप बहुत समय से कर रही हैं, पर आज आपको स्पेशल हमने थोड़ा काम सौंप दिया है. मैं डॉक्टर अंशु वर्मा मैम से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप प्रोफेसर माया रानी टाक मैम को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें.
आपको फिर रुकना पड़ेगा। मैं मंच पर आमंत्रित संगीत विभागाध्यक्ष राजस्थान कॉलेज प्रोफेसर वंदना कल्ला मैम का मैं डॉक्टर अंशु वर्मा से निवेदन करती हूँ कि वे वंदना कल्ला मैम का स्वागत एवं अभिनंदन करें पुष्प गुच्छों के साथ। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना कल्ला मैम। हाँ जी बार बार स्वागत करके फॉर्मेलिटी हो रही है, ये घर का ही काम है। और मेरा मन था कि जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म होगा तो हम उसकी अच्छी मेमोरी लेके पूरी टीम को मैं सम्मानित करती, लेकिन ये मौका अंशु भी थोड़ा रुक के दे पाएगी। ये बार बार वेलकम कर रही है, बार बार जो आवश्यकता नहीं है, ये अपना ही काम है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी कि वो प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम का प्रोफाइल लगा दें प्लीज। और मैं प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे बहुमूल्य विचार अब हमारे साथ साझा करें प्लीज। लावण्य मैम। पहले एक बार इंट्रोडक्शन आ जाए। प्लीज वॉइस ऑन कर दीजिए। Faculty of Fine Arts, Lalit Narayan Mithila University, Bihar. Ma'am has participated for vocal recitals in the cities all over our country, with more than 100 research papers published in national and international journals, magazines, periodicals. She has presented in more than 100 international and national seminars and conferences. Her list of her achievements goes on from her publications, journals, research projects, awards, musical qualifications, and whatnot. जी मैम, इसको लाइट को बंद करवाना है। ये लाइट बंद। हाँ जी, वो मैंने दे दी। ये वाली यहाँ। नमस्कार। आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो राजस्थान कॉलेज और ICSSR के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है और जो 2 युवा स्तंभ के द्वारा डॉक्टर अंशु वर्मा और अमन पाल जी उनके द्वारा इतनी सुंदर तैयारियों के साथ आयोजित किया जा रहा है, मैं सबसे पहले उनके प्रति अपने आभार के उद्गार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इस पूरी आयोजन समिति को मैं उसके प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर परिकल्पना को आकार दिया और आज यह हमारे सामने उपस्थापित है। मैं चाहूंगी कि ये स्क्रीन से इसको हटा दिया जाए, बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आपने लोक और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाया है। आज हम विवश हैं इसके द्वारा कि यह जो दिखाने की प्रवृत्ति है हमारे में बहुत डेवलप हो रही है और होना चाहिए। मैं कम में ज़्यादा बातें रखने की कोशिश करूंगी और मैं 2 नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश करती हूँ और विषय भी वैसा ही है। मैं आभारी हूँ माया मैम की। जब भी कोई बात होती है जो मस्तिष्क पटल पर जो व्यक्तित्व सामने आता है आप हैं। और
जैसा कि बताया, सौभाग्य है मेरा कि आपने मेरा पीएचडी का वाइवा लिया था 97 अगस्त में, 96 अगस्त में, 97 में अवार्ड हुई थी। वंदना जी हमारी विभागाध्यक्षा संगीत की राजस्थान विश्वविद्यालय से है। मैं आप सभी से अनुमति लेते हुए, हमारे पास अगली पंक्ति में बैठे हुए सभी विशेषज्ञों से अनुमति लेते हुए, पूरी टीम प्रतिभागियों से अनुमति लेते हुए अपनी बातों को रखना चाहती हूँ। बड़ा अद्वंद है, लोक में हम सांसें लेते हैं और जो एक निर्जीव पदार्थ है टेक्नोलॉजी, वह हमें आज जीवन दे रहा है। हम जहाँ से जीना शुरू करते हैं, विषय भी बहुत ही सटीक है, गंभीर भी है। परंपरा होनी चाहिए, परंपरा का निर्वाह भी होना चाहिए, लेकिन परंपरा मृत प्राय रहेगी अगर उसके विकास की ओर न देखा जाए। जिस तरह हमारा जन्म होता है, बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर वापस किसी और का चरित्र निर्माण जन्म के द्वारा शुरू किया जाता है। लेकिन लोक को हम ग्रामीण मानते हैं, लोक को हम कहें तो शास्त्रों में, साहित्य में अशिक्षित लिखा हुआ है, और जहां हमारे पास डिग्री आती है कि हम शिष्ट हो जाते हैं। महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय उपाधि देता है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाता हमें लोग ही है। हम उपाधियां लेते हैं, लेकिन जीवन का जितना ज्ञान है वह हम उन कागज के टुकड़ों पर नहीं लिख पाते। वहां हम अक्षम हो जाते हैं, जितना कुछ हमने वहां से सीखा है। संगीत के साथ भी वही स्थिति है। एक ऐसी कला जो हर एक के साथ है, हर कोई सीखा हो, हर कोई उसमें परिपक्व हो, हर किसी के पास उसकी उपाधि हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे पसंद सभी करते हैं, गुनगुना सभी लेते हैं, थोड़ा बहुत सभी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, आज भी यह कला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जीवनोपयोगी कला, जिसका विश्वविद्यालय है, कई विश्वविद्यालय हैं, जिसकी कई शाखाएं हैं, कई विभाग हैं, कई संकाय हैं, और आज भी यह एक्स्ट्रा करिकुलर है। हर एक के जीवन में संगीत है, लौकिक है, सुगम है, शास्त्रीय है, उपशास्त्रीय है, उसके द्वारा वह जीवन यापन कर रहा है, उसका परिपक्व कलाकार है, उसका एक निष्ठ एक आचार्य है, वह उसका अध्येता है। लेकिन किन कारणों से यह एक्स्ट्रा करिकुलर है? इसकी क्षमता हम समझते हैं, क्षमता के कारण एक्स्ट्रा करिकुलर है, लेकिन जो और भी डिसिप्लिन, और भी विषय जो हम पढ़ते हैं, उसके बराबर लेकर चलने के लिए या तो हमारे पास क्षमता का अभाव है, या उस दृष्टि का अभाव है जो इसको शामिल नहीं कर पा रहा है। लोक बड़ा सामान्य है। कई एग्जाम्पल आज हमें अपने विद्वानों से सुनने को मिले। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे या बीज भाषण जो वक्ता थे, की नोट स्पीकर, उनके द्वारा अजीत राय जी ने दिया, हमारे सर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने दिया। लोक बड़ा सामान्य है। कई उदाहरण आए, कई भावपूर्ण उदाहरण हमारे पास आए, लेकिन लोक जिन बातों को कहता है, उन बातों की व्याख्या करने में भी है जो विद्वान कहते हैं अपने को, जितने विद्वान हैं, जितने शिष्ट हैं, वहां जाकर अक्षम हो जाते हैं। कई किसी ऐसे कड़वे फल की तुलना सासू माँ के बोलियों से की गई, लेकिन उसे उस रूप में वहां प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास वह भाषा नहीं है जो लोक में है। यह बात नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी समाज में एक होली के टाइम जब होलिका दहन होती है तो बड़ा फ्रेज एक चलता है, ए जजमान तोरे सोने के किवाड़ एगो गोईठा दा। गोईठा यानी गाय के पोपले जो बनते हैं, गोईठा नेखे लकड़ी दा।
लकड़ी नेके कुर्सीदा, इस तरह करके महल तक जाता है। क्या कहता है? आशीर्वाद देता है, कुछ भी दो, जो तुम्हारा जितना दुख है उसको हम उस होलिका के साथ जला डालें और हम खुशी से होली मनाएं। ये एक फ्रेज सामान्य है और उसमें इतनी बहुत सारे लोग भाव विह्वल होकर घर की बहुत सारी अच्छी चीजें भी दे देते हैं उसमें, या फिर घर की सफाई में जो चीजें निकलती हैं उसको वहां दान देते हैं। यह लोक में ही आता है, लेकिन जहां हम ज्ञानी होने लगते हैं, जहां हमारे अंदर विशिष्टता आने लगती है, जहां हमारे अंदर विशेषज्ञता का भाव पनपने लगता है, वहां लोक की स्वाभाविकता, उसकी सरलता खंडित होने लगती है। वहां हम ऊंची बातें करते जरूर हैं, लेकिन वह लौकिक तत्व जो है, उसका जो सरलतम भाव है, उससे हम थोड़ा दूर होने लगते हैं। एक मैं टेक्नोलॉजी जो यहाँ कहा गया है, मशीनी टेक्नोलॉजी पर कम, गायन वादन में जो टेक्नोलॉजी आया, तकनीक जो इस्तेमाल हुआ, मशीन की नहीं, तकनीक जो आया, मैं उस विषय को लेकर थोड़ा आना चाहती हूँ। बहुत आम एक लोक की होली है, बाद में वह उपशास्त्रीय में आया तो ज्यादा पॉपुलर हो गया। चलो गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया घर। लोक में जो है उसको मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उस रूप में नहीं आ सकती। अपने अपने मंदिर सो निकली, कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मदमाती, सब बयस की थोड़ी गुइया। चलो गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया घर। थोड़ा सा हमने इसमें पुट मजबूरी में डाल ही लिया, क्योंकि मैं लोक से बहुत जुड़ी नहीं इसको प्रस्तुत कर पाई, लेकिन आपा जी ने इसको सिखाया हमें। कैसे टेक्नोलॉजी आकर इसको विस्तार मिला। ढोलक के साथ गाना, सबय बयस की थोड़ी, बयस मतलब उम्र की कम है, उनको वो खेलने जा रही हैं, किस तरह वस्त्र पहनती है, किस तरह श्रृंगार करती हैं, होठों में लाली लगाती हैं, जिसे लिपस्टिक कहते हैं, वो तो होठों के बाहर आ जाता है। तो ये एक लोक है, इसमें किस तरह से स्वाभाविकता है उसको दर्शाया। लेकिन जब इसमें स्वरों के माध्यम से लय ताल युक्त टेक्नोलॉजी जब तकनीक आती है, तो वहां इसका स्वरूप बन जाता है। चलो गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया घर, चलो गुइया। अपने अपने मंदिर सोनिक सी, कोई सांवर कोई गोरी, ये जुड़ा। अपने अपने मंदिर सोनिक सी, कोई सांवर कोई गोरी, एक से एक नयन मदमाती, सब बयस की थोड़ी गुइया। चलो 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 गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया। तो जो खटके हैं, मुर्कियां हैं, कहन है, पुकार है, ढरन मुरन आना, चलो गुइया, ये गमक का एक प्रकार है जो अब ग्रंथों में नहीं मिलता, बनारस घराने में आता है ये। तो उसको जो प्रस्तुत करने में आया, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लग्गी लड़ियों के माध्यम से, सारंगी के साथ इसकी संगति के माध्यम से किस तरह इसका विकास हुआ, उस गायकी को आगे निखारा गया, लोक से ले जाकर जहां एक शिष्ट संप्रदाय है संगीत का, शास्त्रीय जिसको बोलते हैं, जहां राग संगीत है, वहां तक विकास करके इसको खींच के ले गए। सोहर की बात हो रही थी, बड़ा ही मार्मिक है वो। राम की बात हो रही थी, राम घर से निकल रहे हैं, घर से बाहर जाएंगे, इतने सुंदर राम, पुरुषोत्तम, उन्हें कोई ले जाएगा तो हम ढूंढ के कैसे लाएंगे। माँ इसके लिए चिंता में है कि सजा तो दिया इसको, मन में है कि इसे कोई देखे भी, कितना सुंदर है हमारा पुत्र,
लेकिन भय भी है कि कोई ले जाएगा या कहीं गुम हो गया तो कैसे लाएंगे। गोर में जे सोहेला गोरहरा तो गले मोटर माला शोभे हो। आज हम तरह तरह के परिधान पहनते हैं, गले में नेकलेस बोलते हैं, मोटर माला नहीं बोल सकते, नेकलेस बोलेंगे ना। हमारी संस्कृति के खिलाफ है नेकलेस, इंग्लिश वर्ड है लेकिन नेकलेस बोलेंगे। पैर में पाजेब पहनते हैं, उसको पाजेब नहीं बोलेंगे। हाथ के कंगन को कंगन नहीं बोलेंगे, ईयर रिंग्स बोलेंगे, नाक की बालियां नहीं बोलेंगे। तो वहां एक जो ठेठ बोली है, गोर में जो सोहे, आप कर ले। मैंने उसको भेजा नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। हाँ ठीक है, मैंने जो भेजा है वो। तो उस पे बहुत सुंदर फिल्माया भी है उसी तरह ग्रामीण परिवेश में। रविशंकर को क्या जरूरत थी ग्रामीण परिवेश को फिल्माने की? विदेशों का नहीं भेजा है मैंने, इस गाने को नहीं भेजा। तो वे तो विदेशों में रह के आए, पूरा विदेशी कल्चर उन्होंने अपनाया, वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन फिर वो भारत में आकर उस ग्राम को, एक ग्रामीण महिला को सूती साड़ी में, सीधे आंचल में, बच्चे को एक छोटे लिपटे कपड़े में लेकर दर्शाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये हमारा भारतीय लोक है जो खींच कर ले आता है। मिलली सखिया सलेहर मिली जुली चालेली हो, आहे बिचवे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेले हो। एक प्रसव वेदना का आलम है, लेकिन खुशी है कि एक व्यक्ति, मानव साक्षात जन्म लेने वाला है अथवा जन्म ले चुका है, तो उसकी खुशी है। और धुन भी ऐसे स्वरों में, 3-4 स्वरों में ही है। आप बजा के देखेंगे, अगर मध्यम से शुरू करते हैं तो निसा रे गा मा, षट से शुरू करते हैं गामा पा धा नी, इतने स्वरों में ही यह पूरा चल जाता है, पूरा सोहर आ जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बहुत सोहर को ऐसे उपशास्त्रीय शैली में गाकर, मोरा पिछोवरवा चंदन गाछ, बहुत पॉपुलर है, उन्होंने गाया है। रविशंकर जी की बात हो रही थी। चैत में चैती गाते हैं, इधर भी गाते हैं, पूरे देश भर में चैती गाया जाता है। बगिया में बोलेली कोयलिया हो रामा, आधी आधी रतिया। हमारी तरफ जो इसको गाते हैं उसको मनई कहा जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे उसके रात में गाते हैं तो छाया की जरूरत नहीं, लेकिन उसके चबूतरे पर बैठ के इसको गाते हैं। चैती, चैता, चैतावर, ये 3 तरह की चीजें होती हैं। इसमें भी रविशंकर जी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। जिया जरत रहत तीन रैन हो रामा, जरत रहत तीन रैन। अजीत राय जी ने फिल्म के टेक्नोलॉजी की बात की थी। बहुत लंबा है यह, मैंने कुछ काम किया है इसके ऊपर 7 वर्षों तक, तो मैंने उसको देखा है किस तरह से वहां से धुन को ले जाकर। फिल्म में जब किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं चोरी करके ले गए, कैसे कहेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम शास्त्रीय संगीत प्रयोग कर रहे हैं, उपशास्त्रीय कर रहे हैं, लोक संगीत कर रहे हैं, उसको तो उन्होंने फिल्म संगीत ही नाम दिया है। बहुत ईमानदारी है वहां, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत घायल होने की स्थिति हमारी आ जाएगी। हाँ, वहां भी होता है, मेल मिलाप करते हैं उन्हीं 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों में, तो पूरा हमारा फिल्म संगीत चल रहा है, तो चलाना ही होगा। और अमीर खुसरो जी का लोक परिवेश बहुत बड़ा है। उनका एक गीत सैया रूठ गए मैं मनाती रही, इस चैती को देखिए कैसे वहां पिरोया गया है। मैं चोरी नाम नहीं देना चाहती क्योंकि संगीत में हर जगह प्रयोग हुआ है। अमवा के डारे पे, अमवा के डारे पे, चैती के अंतरे को ले लिया।
क्या टेक्निकल दिमाग लगाया वहां पे। हमारे दिमाग में है ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनें हमारे दिमाग की खुराफात है। आप ये लोहा टीन जो भी है, ये उपद्रव सब इस्तेमाल करिए, लेकिन ये सारी उपज हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग मतलब जो भी विद्वान है। अमवा की डारी पे, अमवा की डारी पे बैरी कोयलिया, एकदम सीधा चैती से उठा के ले गए। चैत मास बोलेली कोयलिया हो रामा, अंतरा यही गाते हैं। अमवा की डारी पे बैठी कोयलिया, इसी चीज को ले गए वहां। ये काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किया है। अमवा की डारी पे, अमवा की डारी पे बैरी कोयलिया, गा गा के मुझको रुलाती रही सैया रूठ गए। चैती को ले जाके खुसरो साहब को मिला दिया। कितना सुंदर समन्वय है, अनेकता में एकता का समन्वय, एक विरोधाभास को कितना सुंदर स्वरूप दे दिया। मैं मनाती रही सैया रूठ गए। यहाँ हम नहीं कह सकते कि उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कहीं आघात पहुंचा है, क्योंकि उसने उसको नाम फिल्म संगीत दिया है, लेकिन है बिल्कुल लौकिक तत्व। वहां दृश्य भी बिल्कुल लौकिक है। एक गाना आया था, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन विदेशी नाव के संगीत को लेके आके प्रस्तुत किया गया, बहुत ही विवाद हो गया। हालांकि वो विषय नहीं है, मैं बता देती हूँ चोली के पीछे क्या है। कहीं का फोक है वो, शब्द बदल दिए गए उस इंग्लिश सॉन्ग के और उसको वहां इस्तेमाल किया गया। फिल्म ये नहीं कहता कि हम जो भी दिखा रहे हैं आप नकल करें, चोर को चोर ही दिखाएगा, डाकू को डाकू ही दिखाएगा, महात्मा को महात्मा भी तो दर्शाता है। तो फिर कहाँ महात्मा कहता है कि मुझे क्यों दिखाया? डाकू दिखाते हैं तो हम मनुष्य शोर करने लगते हैं कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। स्वच्छ छवि खराब हो रही है तो दर्शाते हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन जब हमारी अच्छी छवि आती है तो वो वही करेंगे जहां जिस कथा के हिसाब से वहां रूपांतरण किया जाता है। एक अजीब सी शक्ति है लोक के शब्दों में, वही यहाँ पर है। फिल्मों को बहुत बड़े बड़े गीतकार मिले हैं, लेकिन ये सैया रूठ गए कोई लिख सकता था, लेकिन खुसरो जी, अमीर खुसरो ही वहां क्यों याद आ गए? उनके नाम से ही उसको क्यों डाला गया? वहां उसको अमुआ की डारी पे ही क्यों डाला गया? ये वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम आज शिष्ट बने हुए हैं, हम उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं, लेकिन लोक को लोक कहने से कतराते हैं। हम लोक में सांस ले रहे हैं। चावल दाल हम जुबान से मुंह से ही खाएंगे, इस चीज को भी तो जरा बदल दे, इस चीज को बदल दे। चावल को चावल न कहे, आटे को आटा न कहे, सब्जी को सब्जी न कहे, तब तो फिर हम लोग से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। चाहे जितनी चाइनीज डिश खा लें, लेकिन उसमें जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसको हम उसी नाम से कहेंगे और वो लोक का ही दिया हुआ है। हम जो पहनते हैं सूत, वह लोक का ही दिया हुआ है। जो हम जुबान है वो हमारे लोक का दिया हुआ है। मशीन में रिकॉर्ड करके ही सुनाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, वो मशीन बोलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत ही ठेठ फोक है, हमार कहा मानो राजा जी, हमार कहा मानो राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल उलझ मत जाना राजा जी, हमार कहा मानो। फोक है, पंडित जी को खूब पता होगा, नौटंकियों में भी खूब आया। मारे गए गुलाब भाई, कोई कह दे कि मेरा है, नहीं कह सकता। आपके पास होगी, हेलो मैडम, हमार कहा मानो। आप देखें कि फिल्म में इसको किस तकनीक से डाला है, बिल्कुल वही पंक्तियां, और फिल्मा दिया तो भी हम इस लोक को ही जीते हैं। सौतन के मीठे मीठे बोल उलझ मत जाना राजा जी, हमारे कहा
कितना है, व्रज भी है, भोजपुरी भी है और हिंदी भी है, सब कुछ है इसमें। तो इस तरह से खींच के ले जाकर उसमें आकर्षण है, तभी वहां ले गए हैं। स्वर वाद्य लोक में कम इस्तेमाल होता है, गाते हैं उसके साथ ताल वाद्य बजता है। जो स्वर वाद्य बजते थे, एक तारा, सारंगी, या जिनमें कोई ध्वनि, लयात्मक ध्वनि आती थी, तो वो नहीं, इसके बाद एक और। इसके पहले भेजा हमार कहाँ माना से। बंद करिए इसको, बंद करिए प्लीज। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, फिर इसको बजाइएगा। तो बहुत सारी बातें पहले हो गई। तो टेक्नोलॉजी से हम उसका रूपांतरण कर सकते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। हम उसमें कुछ नया करने के चक्कर में क्या करते हैं, कभी अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता। ये उतना ही प्रयोग टेक्नोलॉजी का करें जितना उस विधा को क्षम्य हो, उतनी ही टेक्नोलॉजी उसको चाहिए। अब हम फोक कोई गीत गा रहे हैं और उस पर भरतनाट्यम करें और उसको बोले ये रिमिक्स है, कैसे बर्दाश्त होगा? उस पर कोई वेस्टर्न स्टेप में हम डांस करें, नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन जहां हमें कुछ भी कर देने के लिए मन हो, आधा अधूरा हम जान पाए हों और आधा अधूरा कर पाए हों, इसके लिए तो हम कर ही सकते हैं। बहुत ठेठ में बहुत सारी चीजें हैं। सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। ऐसे चलते हुए महिलाएं गा के कुछ आजीविका के लिए कर लेती हैं, अथवा कहीं कोई उल्लास का ऐसा समय है, बच्चे का जन्म हो गया, शादी ब्याह है, या कुछ और भी, जैसे झूमर गाते हैं ना उल्लास में, वैसे ही। तो ये गाने वाला है। विरहिणी किस तरह से कह रही है अपनी बातों को। दो तरह की नायिकाएं हैं। श्रृंगार में दो तरह के संयोग और वियोग दिखाया गया, लेकिन विरह में भी संयोग वियोग है। एक ऐसी उच्छृंखल नायिका है, बता नहीं पा रही है उसे क्या दुख है, और खुश होके सहेलियों से कहती है अरे वो तो चला गया है, उसको जरा लेके आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो कुछ खेल के आते हैं। एक तरफ कह रही हूँ मन नहीं लग रहा, दूसरी तरफ खेल के आते हैं। उस उम्र का ये तकाजा है। ऐसे में ही सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। ये फोक है। कैसे गाते हैं इसको शास्त्रीय संगीत में, इसको इतना बढ़िया रूपांतरित कर दिया है। जो टेक्नोलॉजी हमारे संगीत में है, छोटी छोटी चीजें, वही खटका, मुर्की, गमक, कर्ण, स्वर, दुगुन, तिगुन, चौगुन, उनके आधार पर। सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे हाय राम। ये जोड़ देने से वो लौकिक तत्व थोड़ा कम हो गया। वहां हाय राम को लोक में हाय राम की तरह बोलते हैं। ना जइबे हाय राम, हाय लगती है वहां। यहाँ जब हम आते हैं उपशास्त्रीय संगीत में, हाय नहीं लगती, हमारी कलाकारी दिखाई देती है। हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए, लाख टके की मोरी बिंदिया, लाख टके की मोरी बिंदिया, वो तो नंदी का जिया लिया जाए, हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। ये जोड़ जोड़ के उस टेक्नोलॉजी में उसको
अगर दादरा गा रहे हैं तो एक ताल की बंदिश भी हो सकती है। 3-3 का छंद है, वहां पे 12 पे आ जाएंगे तो वो 2 बार करेंगे तो एक ताल का बंदिश भी हो सकता है। आने वाले टेक्नोलॉजी अगर इतनी विकसित हो गई तो उसको 12 मतरे का एक द्रुत ख्याल भी बना दिया जाए। और भी बहुत स्वाभाविक बातें जो आज हम इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट वरी, थैंक यू, इस तरह की बातें जो हम कहने में, हिंदी में कहने में झिझकते हैं, लोक में बड़ी सुंदर ढंग से कह दिया गया है। भरी आई भरी आई भरी आई रे गोरिया के नयनवा भरी आई रे। एक लोकगीत है जिसमें एक नायिका अपनी बातों को अलग अलग ढंग से कह रही है। भरी आई भरी आई भरी आई रे गोरिया के नयनवा भरी आई रे। दादरा के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। भरी आई भरी आई भरी आई रे गोरिया के नयनवा भरी आई रे। पहला संदेशा बमना लायो। ब्राह्मण को बड़ा उच्च दर्जा दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण अगर मन के अनुसार नहीं दिशा बताता है तो फिर उनको मनोनुकूल उपहार भी नहीं प्राप्त होता। तो पहला संदेशा बमना लाए, ना बने ना बने ना बने रे गोरिया के सुदिनवा ना बने रे। वही लोकगीत उपशास्त्रीय हो गया। जब आगे बढ़ता है यह संवाद, तीसरा संदेशा सैया मोरा लाए, बनी गयो बनी गयो बनी गयो रे गोरिया के सुदिनवा बनी गयो रे। तो एक संवाद बनना, यह बहुत उच्च कोटि के गीतकार हैं। किसी एक का दो का नाम लेके नहीं चाहती मैं। अभी एक गाना कुछ आया है, वस्त्र ना पहने तो भी कोई बात नहीं, श्रृंगार भी किए बिना तुम आ जाओ, गुलजार साहब की रचना है। तो हम एक साहित्यिक टेक्नोलॉजी भी इतनी ऊपर बढ़ गई है जो यह आजादी दे रही है कि वस्त्र की जगह वहां अंगिया है। पहने बिना भी तुम आ जाओ, श्रृंगार के बिना भी तुम आ जाओ। ये टेक्नोलॉजी आज हमें दुस्साहस करने पर बाध्य कर रही है कि हम अपना स्तर कैसे घटाते जा रहे हैं। कि जो लोक में हम जिसको दबी जुबान में अशिष्ट कहते हैं, कैसे नायिका कह सकती है कि तीसरा संदेशा सैया मोरे लाए, बन गए बन गए बन गए रे गोरिया के सुदिनवा बन गए। कैसे कह सकती है? नहीं कह सकती है, लेकिन लोक में है। अपनी बातों को अपनी सखियों के बीच कह सकती है। हम इसे कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो वो साहित्य है लोक, वह बैकवर्डेड है, बहुत आगे है। लेकिन आज का जो साहित्य कह रहा है कि बिना वस्त्र के आ जाओ, बिना अंगिया के आ जाओ, बिना मेकअप के आ जाओ, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो, यह तो लोग आज तक नहीं कहा है। तो हम किसे शिष्ट कह रहे हैं और किसे पिछड़ा हुआ कह सकते हैं? हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? यह उस गीत को गाया भी है, श्रेया घोषाल जी ने गाया, उसकी रिकॉर्डिंग आई है, मैंने अभी 4-5 दिनों पहले सुना है। तो हम किस तरह की कल्पना लेकर चल रहे हैं? हम नग्न होकर फिर हम उस परिधान में वापस आएंगे, यह एक बहुत जरूरी बात है। हम कितने नग्न होंगे जब तक मेरे पास वस्त्र नहीं है? उतना ही नग्न, खाल खींचकर हम नग्न नहीं हो सकते। तो हमें उस आवरण की ओर आना पड़ेगा जो हमारे लोक का आवरण है, जो हमें सजाता है, संवारता है, हमें समाज में रहने के लायक बनाता है, हमें पारिवारिक दृष्टि के अनुसार पालता है। हम उस लोक में वही बनाता है कि हम उसके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकता है। आज हम कई जगह से अकेले अकेले आए हैं,
ये हमारा लौकिक विश्वास है, यह हमारी लौकिक संस्कृति है जो हमें कहीं से एकदम भय नहीं है, संकोच नहीं है कि मैं कम से कम 1600 किलोमीटर से आई हूं और मुझे यहाँ तनिक भी डर नहीं है। यह हमारा लोग है, यह हमारी शिष्टता है, यह हमारी संस्कृति है। तो हम इस संस्कृति से परहेज नहीं कर सकते हैं और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका कर्तव्य है कि हम उस लोक की ओर जाएं। अभी हम केवल रिसर्च कराते हैं, एक किसी ने नोटेशन कर दिया एक गाने का, उसको दूसरा उतार लेता है, देखता भी नहीं कि वो नोटेशन सही है कि नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है, अदरवाइज हमारी सारी चीजें बदल जाएंगी। गांधार ग्राम नहीं है। गंधर्व करते थे, अरे भाई गंधर्व करते थे तो कौन से गंधर्व देख के वापस आए थे? उनको बताइए कि वो करते थे, उस गंधर्व का नाम बताइए। हम टाल देते हैं कि गंधर्व करते थे, वो इस लोक में नहीं होता, उस लोक में होता है। अरे वहां से कोई वापस आया तब तो बताएगा ना कि उस लोक में होता है। कौन वापस आया? हम ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, तर्क करने की आवश्यकता है, उस तर्क से हम बचेंगे। हमारी संस्कृति जो है वो हमारा धर्म ही केवल नहीं है, वो संपदा है हमारी, हम उसके द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक तृतीय पंथी है, थर्ड जनरेशन है, वो भी हमारी तरह सांस लेता है, हमारी तरह स्वस्थ रहता है, हमारी तरह भोजन करता है, हमारी तरह वो पढ़ता लिखता समाज में रहता है। लेकिन उसको अभी थोड़ा उनको अवसर मिला है, लेकिन उनका भी एक समाज है। हमारे समाज में उनकी जरूरत पड़ती है। उनके आशीर्वाद को भगवान के बाद का पहला आशीर्वाद मानते हैं। हमारे यहाँ जो है वो मैंने जो देखा है, बिहार यूपी में तो हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जो छक्के आते हैं जिसको देखकर हम मुस्कुरा देते हैं या ऐंठ कर चलते हैं, अरे ये तो हमारे समूह में रहने वाला नहीं है। उनका आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। और कहते हैं ना कि फिल्म ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया समाज को, एक एक चीज को ढोके ले गया है। सजी रही गली मेरी अम्मा, ओ मैडम वहां चल रही, आप देखिए एकदम असल में उन लोगों को ले जाकर भोपाल से वहां फिल्माया गया है। किस तरह से और कितनी दर्द भरी कहानी उसमें है। आप गाने को सुनेंगे, शायद स्क्रीन पे आया ना है, वीडियो हमने भेजा है। तो मजरू सुल्तानपुरी ने उसको लिखा, राजेश रोशन ने उसको संगीत दिया, रफी साहब ने गाया, सभी बच्चे बूढ़े थे, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। महमूद साहब का उच्चारण देखिए, वो एक हास्य नायक, हास्य अभिनेता किस तरह की चीज को लेके आया है। उनके पिताजी भी उसमें हैं, देखिए। सुनहरी गोठे में देखिए किस तरह इस्तेमाल किया गया। इसमें भी वो सारी टेक्नोलॉजी होगी जो आज हम लेके घूम रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कब की आई होगी। अरे हाँ सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में। आपको ये एग्जाम्पल दिया मैंने, आप एक बार ध्यान से उसको देखेंगे। सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, अब आप जाके ज्यादा ध्यान देके देखेंगे उसमें क्या प्रयोग हुआ है। तो जहां गुणी होते हैं हर एक चीज से गुण को उठाकर ले जाते हैं। सर ने जैसा बताया नौटंकी में क्या है, हाथ पैर मटका लिया हो गया। एक बार करके तो देखें कितना मटकाना पड़ता है।
जितनी भी चीजें हैं भवई है। अब चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 अंजन की सिटी में मारो मन डोले। आपके जमाने से पहले का गीत था ये, राजस्थान का। तो क्या है इसमें, वो गति है जो लग रहा है कि गाड़ी चलाने की बात हो रही है। उसमें संगीत है, जिस संगीत की टेक्नोलॉजी उसमें डाली गई है वो उसको आगे बढ़ा रहा है। नहीं तो गाना वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। लय, हम शरीर लेके अगर खड़े रहे, हमारे अंदर धड़कन ना हो, गति ना हो, तो वो वहीं चुपचाप खड़ा रहेगा। उसको धकेलने वाला कुछ चाहिए। पंजाब में साडा चिड़िया दा चंबा ओ बाबरा असा टुर जाना साडा चिड़िया दा चंबा। क्या है, हम उस भाव से विह्वल होते हैं। उछलना है अथवा मंत्रमुग्ध होना है, ये सारी चीजें हमारे संगीत की हैं। और लोक का गीत संगीत तो इतना समृद्ध है। जितने भी वक्ता मुझसे पहले आए सबने कहा हमारे यहाँ का लोक संगीत बहुत रिच है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का लोक संगीत बहुत रिच है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, बहुत रिच है हमारे यहाँ। कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ ब्याह चलल शिव शंकर हार भंखर हो। अभी कोई झांसा बोलने के लिए आए थे, ये मिथिला का है। तो वहां का यह नचारी है, महेशवाणी है, जो भगवान शंकर के ब्याह की बात होती है, जिसमें शिव और पार्वती की दोनों की बातें होंगी, नचारी है। जिसमें केवल भगवान शंकर की बात होगी, महेशवाणी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर विदाई हो रहा है तो समदाउन गा रहे हैं, रो के ही जाएंगे सभी, ऐसा है उसमें। विद्यापति जी ने गंगा नदी को छोड़ते वक्त के लिए गीत लिखा, बड़ सुख सार पावल तू तीरे। जब एक नदी जिसमें मनुष्य वाला प्राण नहीं है उसके लिए अश्रुधारा बह रही है, तो मनुष्य के लिए क्या होगा। इसी तरह के लिए इन सब चीजों से ले लेके फिल्मों में खूब बना है। महीने के ऊपर माघ है सखी सर्व सुहावन, सावन का महीना यहीं से गया है। पिया गवन परदेस यो, यहीं से सावन का महीना पवन करे शोर गया हुआ है फिल्म में। तो कुछ पूरा गाना नहीं लिया है तो उसका कुछ एलिमेंट ले लिया, उसकी ब्लेंडिंग कर दी। कुछ फ्रेज को ले लिया, झूठ बोले कौआ काटे, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले जाते हुए, तो फ्रेज ही है। क्या पीछा कर रहे हो, हम जहाँ जा रहे हो वहां आ रहे हो। ये सब चीजें फोक से गई हैं। हाँ, जिस टेक्नोलॉजी हम जिसको आज समझ रहे हैं, जिसको हम तंत्र समझ रहे हैं, जिसमें करंट वाली बात हो, जो किसी तरह अगर टच कर दिया तो ना समझी में टच कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा अगर कुछ हो कि वापस नहीं आता है, उस तरह की टेक्नोलॉजी की बात है। बहुत सावधानी से उसका प्रयोग करना होगा, हमारे लिए आवश्यक है, आज के लिए बहुत आवश्यक है। यह इतना जरूरी हो गया है, हम आप एक दूसरे को जान पा रहे हैं। अंशु जी ने बताया मालिनी जी से संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ा, पंडित जी से, रामदयाल जी से संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ा। वो टेक्नोलॉजी वहां काम आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी तक रखें, लोग को उसमें हेरा फेरी न करने दें, लोग में उसको लाकर आरोपित न करें, वहां से वहां तक रखें। जहां जरूरत होगी वहां तो करना पड़ता है। आज तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो रही हैं, तो हम उसके माध्यम से, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि शायद चित्रकला, पेंटिंग, अक्षर ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो टच करना है ना। ए लिखा हुआ है, ए को पहचानना, ए को टच करना और बनाना, वो ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमें इसको बचाने के लिए थोड़ा सा आफत मोल लेना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, और अपने अपने क्षेत्र के जो विद्वान हैं, जो युवा वर्ग हैं, उसको जरूर बचाएं। समय उसका ही वापस आने वाला है, उसको जरूर बचाएं प्लीज। थैंक यू। वाह मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। समय की कमी थी, बहुत ही तथ्यपरक व्याख्यान था आपका, इतने सोर्स के साथ, इतने फैक्ट्स के साथ आप आई हैं। थैंक यू सो मच।
मैं डॉक्टर माया रानी टाक मैम, अंशु वर्मा मैम से निवेदन करती हूँ कि प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह मैम को स्मृति स्वरूप कुछ भेंट प्रदान करें। प्रोफेसर वंदना मैम, वंदना कल्ला मैम। इस सेशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज बैक स्टेज आकर मुझसे मिलें और लंच ब्रेक है, इसके बाद 15 मिनट आपके पास टाइम है, प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिएगा। सुरुचि गहलोत, प्रवीण मिर्धा, समीधा वेदबाला, दिव्या ज्योति, राजू रावत, आशीष शंकर, मेबान लाम लिंगदो और अर्शद दीप सिंह प्लीज बैक स्टेज आके मुझसे मिले। लोक संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा और प्रौद्योगिकी का प्रभाव जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर आधारित सार्थक, विचारणीय और वर्तमान में प्रासंगिक विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के सराहनीय आयोजन के लिए संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर अंशु वर्मा एवं